ہم نے بجلی پیدا کرنے کے روایتی اور غیر روایتی طریقے پڑھے ہیں۔ روایتی طریقے میں پانی سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، قدرتی گیس سے پیدا کی جاتی ہے، پٹرول سے پیدا کی جاتی ہے۔ غیر روایتی طریقوں میں سولر پاور سے پیدا کی جاتی ہے، ونڈ پاور سے پیدا کی جاتی ہے، بایو ماس سے پیدا کی جاتی ہے۔ تو یہ جو روایتی اور غیر روایتی طریقے ہم نے بجلی کو پیدا کرنے کے پڑھے ہیں، اب بجلی ہم نے پیدا کر لی ہے، جب ہم نے اسے لوگوں کو سپلائی کرنا ہے تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے لوگوں کو ناپ تول کے دینے کا، ان سے پیسے لینے کا۔ تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر محلے میں ایک ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، اس ٹرانسفارمر سے بجلی جو ہے ہمارے میٹر میں آتی ہے۔ میٹر جو ہے جب گھر میں کسی جگہ پہ بجلی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو وہ میٹر چلتا ہے، اس پہ یونٹ آ جاتے ہیں کہ اتنے واٹ جو ہے اس گھر نے بجلی جو ہے وہ استعمال کی ہے، اور ان یونٹ کے ہمیں جو ہے وہ منتھلی پیسے دینے پڑتے ہیں، بل آ جاتا ہے۔ وہ بل گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہوتے ہیں، جس سے بجلی پیدا کرنے کے تمام اخراجات ان کے ملازموں کو جو ہے تنخواہیں وغیرہ دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح بجلی پیدا کرنے کا سرکٹ جو ہے چلتا ہے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ الیکٹریسٹی انرجی کی پیمائش ہم کیسے کریں گے، کون سے میٹر لگائیں گے اس کو پیمائش کرنے کے لیے۔ الیکٹریکل انرجی بھی جول میں ماپی جاتی ہے، لیکن عملی طور پر الیکٹریسٹی کے لیے کلو واٹ آور کا یونٹ استعمال ہوتا ہے۔ گھروں میں لگے ہوئے بجلی کے میٹرز اسی یونٹ میں الیکٹریسٹی کی پیمائش کرتے ہیں۔ بجلی کی کوئی شے کتنے یونٹ انرجی خرچ کرتی ہے، اس کا انحصار چلنے والی شے کی پاور اور اس کے وقت کے دورانیے پر ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں خرچ کی گئی انرجی کی مقدار پاور کہلاتی ہے۔ پاور کی کیا تعریف ہے؟ ایک سیکنڈ میں خرچ کی گئی انرجی کی مقدار کیا کہلاتی ہے؟ پاور کہلاتی ہے۔ انرجی وقت کتنا ہے؟ ایک سیکنڈ۔ انرجی جتنی ایک سیکنڈ میں استعمال ہوئی اس کو پاور کہتے ہیں۔ پاور کا یونٹ کیا ہے؟ پاور کا یونٹ واٹ ہے، جس کا سمبل W ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلب کے اوپر 60 واٹ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ 60 واٹ سے کیا مراد ہے کہ یہ جو 60 واٹ کا بلب ہے وہ ایک گھنٹے میں 60 واٹ جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ 100 واٹ کا بلب ایک گھنٹے میں 100 واٹ استعمال کرے گا۔ یا بلب کی پاور، یہ بلب کی پاور ہوتی ہے بجلی سے چلنے والی اکثر اشیاء کے اوپر ان کی پاور لکھی ہوتی ہے۔ 1000 واٹ پاور کو 1 کلو واٹ کہا جاتا ہے۔ 1 کلو واٹ جو ہوتی ہے وہ 1 یونٹ ہوتی ہے۔ پھر ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، الیکٹریکل انرجی بھی جول میں ماپی جا سکتی ہے، لیکن عملی طور پر الیکٹریسٹی کے لیے کلو واٹ آور کا یونٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ گھروں میں لگے ہوئے میٹر کے اسی یونٹ میں الیکٹریسٹی کی پیمائش کرتے ہیں۔ بجلی کی کوئی شے کتنے یونٹ انرجی خرچ کرتی ہے، اس کا انحصار چلنے والی شے کی پاور اور اس کے وقت پر ہوتا ہے۔ پاور کی تعریف کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں خرچ کی گئی انرجی کی مقدار کو پاور کہتے ہیں۔ پاور کا یونٹ کیا ہے؟ واٹ ہے۔ اس کو کس سے ظاہر کرتے ہیں؟ W سے ظاہر کرتے ہیں۔ جو بھی ہم کوئی الیکٹریسٹی سے چلنے والی چیز لیتے ہیں اس کے اوپر اس کی لکھی ہوئی ہوتی ہے پاور کی، یہ کتنی بجلی جو ہے استعمال کرتی ہے ایک گھنٹے میں۔ بلب 60 واٹ بھی ایک گھنٹے میں استعمال کرتا ہے، 100 واٹ بھی استعمال کرتا ہے، یہ بلب کی پاور ہوتی ہے۔ بجلی سے چلنے والی اکثر اشیاء کے اوپر ان کی پاور لکھی ہوتی ہے۔ 1000 واٹ پاور کو 1 کلو واٹ کہتے ہیں۔ الیکٹریکل انرجی کا یونٹ کیا ہے؟ الیکٹریکل انرجی کا یونٹ جو ہے وہ کلو واٹ آور ہے، جسے مختصر kWh کہتے ہیں۔ جب ہمیں بل آتا ہے تو اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اتنے کلو واٹ آور، اتنے یونٹ جو ہیں وہ استعمال ہوں گے۔ کلو واٹ آور کو یونٹ کہتے ہیں۔ 1 کلو واٹ آور انرجی کی وہ مقدار ہے جو 1000 واٹ پاور کی شے ایک گھنٹے میں استعمال کرتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی بجلی کا مشین ہے جو 1000 واٹ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے ایک گھنٹے میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کلو واٹ آور کہتے ہیں۔ اس حساب سے 100 واٹ کا بلب جو ہے 10 گھنٹے میں 1 یونٹ استعمال کرتا ہے۔
100 वाट का बल्ब लगा दें, 10 घंटे उसको चलाएं तो 1 यूनिट सर्व करेगा। और 200 वाट का बल्ब लगा दें तो 5 घंटे में 1 यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सर्व करता है। अगर 2500 वाट का एयर कंडीशन जो है वो 1 घंटे में 2.5 यानी 2.5 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी सर्व करता है। तो ये जितने भी हमारे बिजली से चलने वाली मशीनें हैं इनके ऊपर तकरीबन लिखा हुआ होता है कि ये बिजली कितनी इस्तेमाल करेगा। एयर कंडीशन पे लिखा हुआ है 2500 वाट इस्तेमाल करता है। 2500 वाट से मुराद है कि 2.5 यूनिट यानी 2.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ये 1 घंटे में इस्तेमाल करेगा। इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का मीटर जो है ये दिखाए गए हैं शक्ल में, ये इलेक्ट्रिसिटी के मीटर है। मीटर के काम करने का असूल वही है जो इलेक्ट्रिक मोटर का मेन सप्लाई की गर्म तार मीटर की फील्ड को कॉइल्स में से होकर गुजरती है। फील्ड कॉइल के दरमियान एक घूमने वाली कॉइल होती है जिसे एक बड़ी रेजिस्टेंस के जरिए मेन सप्लाई से जोड़ा होता है। जब घर में कोई शय ऑन की जाती है तो फील्ड कॉइल में करंट गुजरती है, इससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और अंदर की कॉइल घूमने लगती है। कॉइल के साथ लगी डिस्क हमें बाहर से घूमती नजर आती है। मीटर में से जितना ज़्यादा करंट गुजरेगा उतना ही तेज़ी से डिस्क जो है वो घूमेगी। डिस्क के साथ मुंसलिक गियर्स मीटर रीडिंग को हिस्सों की शक्ल में डायल पर जाहिर करते हैं। आमतौर पर इंतहाई दाएं तरफ वाला हिस्सा जो होता है वो यूनिट का 1/10 हिस्सा यानी इशारिया होता है, जबकि इसके बाएं तरफ के रीडिंग किलोवाट और वाट आवर्स यूनिट को जाहिर करते हैं। अब इसके लिए ये एक मीटर हमने मुख्तलिफ मीटर दिखाए हैं। जब बिजली इस मीटर में आती है तो ये प्लेट घूमती है, ये प्लेट के घूमने से ये मीटर पे जो है वो रीडिंग आती है। ये इंतहाई दाएं तरफ है, ये इशारिया में होती है। इससे आगे ये यूनिट जो है वो ये सारे इसमें इस्तेमाल होते हैं। एक तो मीटर होते हैं कि इस तरह उस पर यूनिट चल रही होती है, एक जो आजकल एडवांस मीटर हैं उन पे इस तरह यूनिट से चल रही होती हैं। तो इस तरह के ये मीटर जो हैं ये पुराने मीटर हैं। इस तरह में ये एक प्लेट घूम रही है, ये जब बिजली ट्रांसफार्मर से इसमें आती है तो ये घूमती है। ये प्लेट उतनी ही ज़्यादा तेज़ घूमेगी जितनी हम जो है वो बिजली जो है घर में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये प्लेट तेज़ी से घूमेगी, ज़्यादा यूनिट शो करेगी। अगर हम जो है घर में जो है बिजली कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आहिस्ता घूमेगी। अगर हम इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे बिजली को तो ये प्लेट नहीं घूमेगी। अब ये जो पुराने मीटर थे उनमें इस तरह बिजली शो की जाती है, जो नए मीटर हैं उनमें इस तरह के डिजिट्स आते हैं। तो ये आज जो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैमाइश करने के जो तरीका हमने पढ़ा है, ये इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है, घर के बाहर लगा हुआ होता है। इससे जो है वो यूनिट जितने यूनिट चलते हैं ये महीने में एक ख़ास तारीख को जो है उसको नोट किया जाता है और उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसका बिल बना के जो है वो लोगों को घरों में भेजा जाता है। दूसरा जो आज हमने पढ़ना है वो है कुदरती गैस की पैमाइश। कुदरती गैस को हम जो है वो कैसे पैमाइश करेंगे? कुदरती गैस की पैमाइश क्यूबिक मीटर्स में की जाती है। ये कुदरती गैस का मीटर है, गैस मीटर है। मीटर में से गुजरते हुए गैस एक चरखी को घुमाती है। इसके अंदर एक चरखी होती है, उसको घुमाती है। ये चरखी से मुंसलिक गियर्स मीटर से गुजरने वाली गैस का वॉल्यूम डायल पर जाहिर करते हैं। ये डायल है, इस पे वॉल्यूम जो है वो जाहिर करते हैं कितनी गैस इस्तेमाल हो रही होती है। अगरचे पेट्रोल, डीजल और कुदरती गैस वॉल्यूम के यूनिट में मापे जाते हैं, लेकिन ये ईंधन एनर्जी के यूनिट में भी मापे जा सकते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ईंधन की कितनी मिकदार कितने जूल हरारत पैदा करती है। आजकल गैस के बिल जो हैं वो क्यूबिक मीटर की बजाय BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बुनियाद पर वसूल किए जाते हैं। अब BTU क्या है? इसमें सवाल में भी आ सकता है BTU से क्या मुराद है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करें तो उस वक्त हमने जो है वो कुदरती गैस की ये सारा जो है हमने बयान करना होगा।
मीटर्स की बजाय BTU की बुनियाद पर बिजली वसूल की जाती है। ये एनर्जी का एक यूनिट है जिसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। एक BTU जो होता है वो 1055 जूल के बराबर होता है। दूसरा आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कुदरती गैस की पैमाइश। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी की पैमाइश पढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स के बारे में हमने जो है वो पढ़ा है। कुदरती गैस के लिए जो है ये मीटर लगे हुए होते हैं, ये गैस को जो है मापते हैं। इसकी रीडिंग जो है वो किस में आजकल आ रही है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में आ रही है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो कितने के बराबर होता है, 1055 के बराबर होता है जूल के। कुदरती गैस की पैमाइश क्यूबिक मीटर में की जाती है। मीटर में से गुजरते हुए गैस एक चरखी को घुमाती है। चरखी से मुंसलिक गियर्स मीटर से गुजरने वाली गैस का वॉल्यूम डायल पर जाहिर करते हैं। यह डायल है। अगरचे पेट्रोल, डीजल और कुदरती गैस वॉल्यूम के यूनिट में मापे जाते हैं, लेकिन ये ईंधन एनर्जी के यूनिट में भी मापे जा सकते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ईंधन की कितनी मिकदार कितने जूल हरारत पैदा करती है। आजकल गैस के बिल जो हैं वो क्यूबिक मीटर की बजाय BTU के बुनियाद पर वसूल किए जाते हैं। BTU क्या है? ये एनर्जी का एक यूनिट है जिसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने के बराबर होता है? 1055 जूल के बराबर एक थर्मल ब्रिटिश यूनिट होता है। आज के लेसन में हमने मीटर्स के बारे में पढ़ा है। कौन से मीटर? जो घरों के बाहर लगे हुए होते हैं। ये कितनी किस्म के होते हैं? एक तो गैस की मेजरमेंट करने वाले मीटर लगे हुए होते हैं हमारे घरों के बाहर, और एक बिजली की मेजरमेंट करने के लिए जो है बिजली के मीटर लगे हुए होते हैं। तो दो तरह के जो मीटर लगे हुए होते हैं उनका हमने पढ़ा है कि इनकी यूनिट को क्या कहते हैं, ये बिजली को कैसे मेजर करते हैं, ये गैस को कैसे मेजर करते हैं। थैंक यू।